Good morning, everyone. Welcome to IACSD. I hope I'm audible to everyone. Okay, so welcome to IACSD. I'll give you the brief introduction about IACSD. Okay, so this is a small presentation. IACSD is a part of DY Patil Pratishthan, and Pratishthan was founded in 1991. We are committed to education in various disciplines. We train more than 50,000 students are undergoing education in different discipline. About the IECSD, IECSD is an authorized training center of CDAC Acts since 1998. So this year we are celebrating 25th years. As we already mentioned, IECSD is a part of DY Patil Group. At IECSD, we focus on delivering skilled manpower in the IT and electronics. IECSD having vision is Institute for Advanced Computing Software Development is committed to producing high quality manpower with the technical and intellectual skills by creating conducive academic climate where future leaders are imbibed with the Gyan as a knowledge, Buddhi as a wisdom, and Vivek as consciousness. Our mission is to create highly skilled IT resources and are recognized by major corporates in India. We strive with intellect, strong technical and interpersonal skill that help student to excel in the corporate world. Uh, Basically at ICSD, we offer four courses. The major three courses, post-graduation diploma in advanced computing. Second course is post-graduation diploma in big data analytics. Third course, which we have as post-graduation diploma in IT infrastructure, system and security. And the fourth, which is a preparatory course for CCAT entrance exam, which called as a pre-CAT, where you guys have enrolled. If we talk about the courses which we offer, like we offer the first course, which is a PG DAC. And if someone is looking to join the PDAC, the DAC course, this is the content which you will be having for next 6 months. So a concept of programming operating system, then we have ops with Java, then algorithm and data structures, database, web programming, web-based Java programming, and .NET. The second course, which we offer is post-graduation diploma in big data analytics. If someone is looking to make the career in Linux programming, cloud, R, Python, then advanced analytics, data collection, big data, and data visualization, and the machine learning. So this course, which you can consider. So this is the third course, which we offer is post-graduation diploma in IT infrastructure, system and security. If someone is interested in computer networks, operating system administration, security concept, network defense, cyber forensics, and IT infrastructure management and DevOps, this course which you can consider. Apart from this, CDAX offer more than 12 courses which you can enroll as you are preparing for pre-CAT with the section A and section B. About this batch, we'll be covering as everyone knows that we'll be covering section A, section B. We are starting from today and we are expecting to end this batch in November end. The time which we have is morning time to for this month we'll be having from 10 to 2 o'clock, and post that we will be update what will be the timing. The duration for this pre-CAT batch is 180 hours. About the syllabus, section A, we have English, aptitude, reasoning, computer fundamental, and concept of programming. Section B, we have C programming, data structures, OOPS, operating system, network, big data, and AI. This is the highlight of pre-CAT batch, where you get application-oriented training, ebooks, expert session recording, and mock test series. These are the few recruiters which we have mentioned.
Those are like Netor, Hero, Jet2Travel, Siberium, Infineon, Flextrade, and Siemens. So that's the small presentation which we have for IACSD. So do you have any questions, students? I hope I'm audible to everyone, right? Yes, so I have one question. Yes, please. You have shown that first three some kind of courses are there Okay. in which Yes. cloud computing is there. So I wanted to apply for cloud computing. So I have to take that kind of course for 6 months. Right. So this pre-CAT course, which is going to train only for the entrance exam, right? Once you give the CCAT entrance exam, the lets your rank come out, then you can decide which course you want to go for, right? So this was just brief information about IACH and what we are offering, right? Apart from this course, there is a, as I mentioned, more than 12 courses which you can choose in the CDAC. Okay, sir, got it. Yeah. Thank you so much. So anyone have questions? Yes, Anurag. Do you have any questions? Okay. So, like, I just want a brief introduction from student side, like, your a graduation in which discipline, and the year, and the place where you uh, currently staying. So we'll start with Anurag. Anurag, please introduce yourself. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are audible. My name is Anurag and I am from Jabalpur, Madhya Pradesh. I have completed my BTech from Lakshmi Narayan College of Technology and Science in Bhopal in specialization Artificial Intelligence and Machine Learning in 2024. Okay. Thank you, Anurag. Next, we have is Kedar Mane. Yes, sir. Hello, everyone. Am I audible, sir? Yes, you are audible to me. Okay. Myself, Kedar Pradeep Mane. I have completed my BE program from ASMS IIT, which is located in Pune, in the field of computer engineering, and I currently live in Pune itself. Yeah. Thank you so much. Next, we have Shravani. Shravani, please introduce yourself. Okay, so my student having some issue. Next, we have is Vaibhavi. Please introduce yourself. Hello, sir. Hello, everyone. My name is Vaibhavi Panchal, and I have done masters in computer science from DY Patil University, from DY College in Pune only, and I live right now in Pune. Thank you so much. So I would like to introduce a resource person. She'll be taking your session. Mrs. Sushma Hattarki. Ma'am hold a master degree in ENTC. She's having more than I guess 4+ years of experience in the field of networking, and she is certified in CCNA and MCSE. I would like to request ma'am to take over the session. Or Rohit sir, do you want to add something? So, congratulations and all the best, students. Okay. So Sushma ma'am, please take the session ahead. Sir, just wait a minute. Sure. Because I need to log in with ICSD Akurdi. Okay, just wait. Okay, sure. Okay. Okay, good morning, all of you. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Yeah. So we'll start. Okay, so as Deepak sir introduced, myself Sushma.
I am going to conduct your operating system and computer fundamental part of pre-CAT batch. So let's start with operating system. Deepak sir, can you unshare your screen? Yeah. Okay. So first we'll start with the operating system. So how many of you know what is mean by operating system? Basically, the what we can say, the Linux or Windows on which the system is currently working on. The Yes, uh, working bas- on the yeah, ma'am. okay. Anyone? Interface between user and hardware. Yes, interface between user and the hardware. So hardware part is there, or we can say to use that hardware we need the operating system, right? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो जानने से पहले वी नीड टू चेक व्हाट इज मीन बाय हार्डवेयर पार्ट. जो हार्डवेयर रिक्वायर्ड है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए, तो वो क्या है? तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या आता है? पूरा हार्डवेयर का पार्ट. क्या क्या आएगा कंप्यूटर सिस्टम में? Everyone is aware about the computer system, right? CPU, Yes, CPU, storage, storage, right? memory, Memory. Anything else? So basically, computer system is made up of hardware plus software. Hardware plus software, right? So hardware means there is some kind of input devices, and जो भी input उसको दिए गए हैं उस पे प्रोसेस करके will get the output. So this input is converted into the output. तो ये काम हार्डवेयर का है, और इसके बीच में the process which is done by the processor, it is by the software. तो इसके बीच में आएगा सॉफ्टवेयर का पार्ट. So see what is mean by computer. So input unit is there. That input is given by the user, and this input unit gives that input to the next one. तो उसके next कौन है? Either it is a storage unit, means if we are giving a plus b, a simple command, हम एक addition का function perform कर रहे हैं. Just I entered the value for a is 3, and when I am typing the value for b, at that time ये जो 3 वैल्यू है ये कहीं पे स्टोर्ड रहेगी. तो वो स्टोर करने के लिए देयर इज ए स्टोरेज यूनिट. या तो फिर इसके अलावा a प्लस बी 3 प्लस 2 किया, आंसर इज 5 आया, तो ये भी तो वैल्यू कहीं पे सेव करनी चाहिए. तो ऐसे अलग अलग पर्पस से अलग अलग स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं. अलग अलग पर्पस से अलग अलग स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं, जिसमें हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा स्टोर करते हैं. देन ये जो अभी मैंने टास्क परफॉर्म किया 3+2 वाला, तो ये 3+2 वाले में क्या है कि ये प्लस एडिशन का जो टास्क है
ये परफॉर्म करने के लिए देयर इज ए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा? दिस विल परफॉर्म दिस एडिशन टास्क एंड देन ये एडिशन का टास्क करना है, इस 3 को लेना है, 2 को लेना है एंड इट विल गिव द रिजल्ट 5। तो ये सब कुछ करने के लिए कंट्रोल यूनिट इज देयर विच कैन कंट्रोल एवरी सिग्नल, which can control every signal. So बीच में जो आता है इनपुट एंड आउटपुट के, दैट इज स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में देर आर 2 types of storages basically. Again there are different types of storages also available, but basically secondary storage and primary storage. So secondary storage है, primary storage है, then ये जो भी स्टोर करना है या जो भी इनपुट्स दिया है, जो भी प्रोग्राम डेटा उसको दिया गया है, उस पे काम करने के लिए कंट्रोल यूनिट इज देयर एंड ALU, that is arithmetic logic unit is there. और ये टास्क परफॉर्म करके द आउटपुट विच इज डिस्प्ले, दिस इज कॉल्ड आउटपुट यूनिट। अभी ये इसमें इनपुट में क्या क्या आएगा एंड आउटपुट में क्या क्या हार्डवेयर आएगा? टेल मी, एनीवन नोस? यस, इनपुट में क्या क्या आएगा और आउटपुट में क्या क्या आएगा? किसके थ्रू we can give the input to computer and by using the which devices we get the output? Yes, tell me. My input devices are like keyboard and mouse. Yes, keyboard is there, mouse is there. Again, Output devices are printer and monitor. मॉनिटर है, प्रिंटर है, राइट? तो इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, देन टच स्क्रीन भी आएगा, स्कैनर भी आता है, माइक आता है. So these are the input units. And in output units, monitor है, display, then speaker है, printer है. तो ये सारे क्या है? आउटपुट यूनिट्स है. देन यहाँ पे जो हमने स्टोरेज यूनिट वर्ड यूज किया है, यहाँ पे सेकेंडरी एंड प्राइमरी ओनली 2 आर देयर. बट if we see the computer memories, then there are different types of memories. These are also storage units, but उसके साइज के हिसाब से, उसके फंक्शन के हिसाब से वो डिफरेंट है. ठीक है. देन अभी ये जो डायग्राम दिख रही है, इट इज लाइक अ पिरामिड. ये एक पिरामिड जैसी है. वाई? क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे बेस में सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज मास स्टोरेज, मतलब जिसकी साइज सबसे ज्यादा है. ये देखो यहाँ पे ये कैपेसिटी वाइज जा रहा है ग्राफ, और ये अप साइड में जा रहा है स्पीड एंड कॉस्ट के हिसाब से. तो जैसे जैसे स्पीड और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, वैसे कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है. और कैपेसिटी अगर ज्यादा है तो उसका स्पीड और कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर थोड़ा कम है. तो सेकेंडरी मेमोरी दैट इज मास स्टोरेज. तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा? जहां पे सबसे ज्यादा स्टोरेज हो सकता है. तो सबसे ज्यादा स्टोरेज हम किस पे कर सकते हैं? कौन से हार्डवेयर डिवाइस पे?
हार्ड डिस्क, राइट। सी, एक मिनट मैं आपको और एक ये दिखाती हूँ। सी, जनरली कंप्यूटर में प्रोसेस कैसी होती है, देखो। थोड़ा छोटा कर देते हैं। रैम, यस, ये डायग्राम हमें एंड तक पूरा इसका स्टडी करना ही है, बट सबसे फर्स्ट तो ये है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव। ये है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें हमारा बहुत सारा डेटा लार्ज अमाउंट में हमने स्टोर करके रखा है। देन हार्ड डिस्क ड्राइव से हमारा डेटा जाएगा रैम पे, और फिर रैम से जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो ये रैम है या हार्ड डिस्क है, दिस बोथ आर दी स्टोरेज यूनिट्स, जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क की जो साइज है वो सबसे ज्यादा है। हार्ड डिस्क की साइज, उसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, एंड देन उसके कंपेयर्ड में रैम की कैपेसिटी थोड़ी कम है। देन सी, यहाँ पे देखो पहले, यस, सेकेंडरी मेमोरी मास स्टोरेज इसमें आएगा फ्लैश हार्ड डिस्क, जिसको बोला गया है परमानेंट स्टोरेज एरिया, और उसी को बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इफ यू वांट टू कनेक्ट द एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क देन यू कैन कनेक्ट, बट एक हार्ड डिस्क बेसिकली कंप्यूटर में होना मैंडेटरी है। व्हाई? बिकॉज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज कर रहा है वो स्टोर करने के लिए इट रिक्वायर्स द हार्ड डिस्क, या तो फिर इट रिक्वायर्स सम स्टोरेज यूनिट। बिकॉज हम आगे देखेंगे बूटिंग की वगैरह प्रोसेस आएगी इसमें, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाती है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, तो उस टाइम वी रिक्वायर्ड दी हार्ड डिस्क। देन नेक्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, और इट इज कॉल्ड एज ए मेन मेमोरी। सो इन दैट रैम इज देयर, जिसको बोला गया है डी रैम, डायनेमिक रैम। Why it is called as dynamic RAM? Because once you disconnect or once you switch off the computer, then the data which is on the RAM will flush out. जो भी डेटा आपने रैम पे स्टोर करके रखा है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा आफ्टर स्विच ऑफ द कंप्यूटर, बट स्टिल इट इज अ मेन मेमोरी, बिकॉज माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का हार्ट है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो ये माइक्रो प्रोसेसर हमेशा रैम के साथ ही डील करता है। मींस जो भी टास्क उसको परफॉर्म करने हैं, जैसे अभी हमने लिया था A+B वाला, तो A+B में ये जो टास्क परफॉर्म करना है ये रैम विल टेल टू दी माइक्रो प्रोसेसर टू डू दिस टास्क। ये टास्क कंप्लीट करने के लिए यही इंस्ट्रक्शन देने वाला है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड एज ए मेन मेमोरी। देन नेक्स्ट है कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या है? इट इज द अगेन द स्टोरेज यूनिट। ये भी एक स्टोरेज यूनिट है जो फ्रिक्वेंटली कमांड्स यूज किए जाते हैं। लाइक मैं जैसे अभी स्विच कर रही हूँ
एक पीपीटी से मैं स्विच कर रही हूँ पेंट पे, या तो मैं स्विच कर रही हूँ जूम मीटिंग पे। तो ये जो स्विचिंग की प्रोसेस में फ्रिक्वेंटली कर रही हूँ ये कहीं पे स्टोर हो जाती है, ताकि जब भी मैं उसको कॉल करूँ तो वो इमीडिएटली कॉल हो जाए। तो उसके लिए कैशे मेमोरी यूज की जाती है टू स्टोर दी frequently used commands. Then CPU registers are there. तो CPU registers क्या होते हैं? It is the smallest part of the storage, जिसमें सबसे छोटे साइज का डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे अभी मैंने ये वाला बताया आपको एग्जांपल A+B वाला, तो A की वैल्यू टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर होगी, देन बी भी जब आप टाइप करोगे तब भी वो बी की वैल्यू वहां पे स्टोर करेगा, एंड देन एडिशन का फंक्शन उसको देने के बाद इट विल परफॉर्म दी एडिशन, तो वो वहां से फिर से फेच करके ले लेगा। तो ये तीनों के तीनों जो है अपसाइड वाले, ये तीनों टेम्पररी स्टोरेजेस है। टेम्पररी स्टोरेजेस मीन्स वंस यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर देन होल डेटा विल गेट इरेज्ड। सो सी कैशे मेमोरी जो है वो क्या होती है? तो ये है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे कहीं पे होगा माइक्रो प्रोसेसर, देन यहाँ पे ऐसे अलग अलग कैशे मेमोरी के चिप रहते हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के चिप्स रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इसके चिप होते हैं, जिसको बेसिकली यल से डिनोट किया जाता है। L1 L2 L3, L1 L2 L3, ऐसे तीन कैशे मेमोरी के चिप्स अगर है तो ये नियर टू द माइक्रो प्रोसेसर है, तो इनका डायरेक्टली कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैशे मेमोरी का स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू रैम। रैम भी यहीं पे कहीं पे होगी। देन हार्ड डिस्क मदरबोर्ड को एक्सटर्नली कनेक्टेड रहती है, वो मदरबोर्ड पे इनबिल्ट नहीं रहती है, वो साटा केबल का यूज करके कनेक्टेड रहती है टू दी मदरबोर्ड। तो L1 L2 L3 ये सबसे नियर टू द माइक्रो प्रोसेसर है, दैट्स व्हाई द स्पीड इज हाईएस्ट बट कैपेसिटी इज लो। आपने कभी मदरबोर्ड देखा होगा तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। यहाँ पे और भी सारे बहुत रजिस्टर्स रहते हैं, और भी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर छोटे छोटे और चिप्स रहते हैं कंट्रोलर के वगैरह, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ग्रे कलर की एक लाइन रहती है, उस पे बहुत सारा प्रोसेस करके फिर वो मदरबोर्ड बनता है। तो ये ग्रे कलर का जो रहता है वो कनेक्शंस होते हैं, उसके रिलेटेड भी आगे हमें चीजें देखनी है। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड सीपीयू रजिस्टर का, कैशे मेमोरी का और मेन मेमोरी का ज्यादा है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। तो पिरामिड का मीनिंग ही यही है कि जो बेस में है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है बट स्पीड कम है, दैट इज हार्ड डिस्क। अबाउ दैट रैम, अबाउ दैट कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर। एंड कॉस्ट की भी अगर बात करें तो कॉस्ट में भी देखेंगे तो अगर मैं 500 GB का हार्ड डिस्क खरीद रही हूँ तो इट इज नियर अबाउट कितने में आता है? एनीवन नोज? पता है किसी को कितने में आता है 500 GB की हार्ड डिस्क खरीदनी है तो? 2000, यस, nearly 2000. नियरली 2000। Yes. मैं कितनी बोल रही हूँ? 500 GB की बोल रही हूँ। 500 GB का आएगा 2000 रुपीज में, और वही अगर मैं 8 GB की रैम खरीद रही हूँ तो उसकी प्राइस
2500. 2500। देखो साइज में कितना डिफरेंस है, 500 GB और 8 GB, बट स्टिल कॉस्ट रैम की ज्यादा है, और इसीलिए ये कॉस्ट अपसाइड में ज्यादा होती जा रही है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैम वो थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हुआ था, वो जो आपने बताया था ना L1 L2, वो हाँ, L1 L2 क्या है? वो वो रजिस्टर सेल? कैशे नहीं, कैशे मेमोरी के चिप्स है वो। जैसे प्रोसेसर के वगैरह चिप रहते हैं ना, वैसे ही कैशे के चिप है वो। ओके ओके। वो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। स्टॉप शेयर। 1 मिनट, आपको मैं दिखाती हूँ पीसी में। यस मैम। टास्क मैनेजर मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। देखो यहाँ पे ये नीचे दिख रहा है, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे। यस मैम। तो ये है कैशे मेमोरी, ये टास्क मैनेजर में आपको दिखाता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। सो नेक्स्ट है रिलेटेड टू मेमोरी। नेक्स्ट है रिलेटेड टू मेमोरी। तो memory related, as I told you, there are two types of memory basically, मैडम primary memory and secondary memory. हेलो मैडम, हाँ, आवाज ब्रेक हो रहा है मैडम, आवाज ब्रेक हो रहा है, क्लियर नहीं आ रही वॉइस। हेलो हेलो, अभी आ रही है? ब्रेक हो रही है मैम आवाज, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस तो क्लियर है, शायद उनका नेटवर्क इश्यू है। हाँ मैम, क्लियर है वॉइस। वैभव एक बार चेक कर लो या आपका इंटरनेट कनेक्शन। मैम यहाँ पे तो क्लियर आ रहा बाकियों को है आ रही है क्या आपका? क्लियर वॉइस? बाकियों को क्लियर आ रहा है क्या वॉइस? यस हाँ, यस, वही बता क्लियर रहे, बाकी को क्लियर आ रहा है। क्लियर है। ओके। सो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो टाइप्स है मेमोरी मैनेजमेंट के। तो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आएगा। रैम और रोम, एक चीज मैं बताना भूल गई। सी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, तो कैशे मेमोरी का स्पीड स्पीड के हिसाब से वो पूछ सकते हैं, या कैपेसिटी के हिसाब से वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग द लार्ज कैपेसिटी, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्टोर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, और विच हैविंग द हाई स्पीड। तो उस हिसाब से इस पे क्वेश्चन आ सकता है कंप्यूटर मेमोरीज पे। ओके, देन प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम, दीज आर दी टू टाइप्स। तो रैम में आएगा डी रैम और यस रैम, दैट इज डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। ये आपके इसमें इतना डिटेल में नहीं है, बट यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो थ्रू दिस, आप पूरा इसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो रैम में दो टाइप्स आते हैं रैम के। देन रोम, रोम इज नथिंग बट द रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या होती है, आपने कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उस टाइम पे एक ब्लैक कलर की विंडो रन होती है, देखो, और व्हाइट कलर के कुछ कमांड्स वहां पे आते हैं। तो वो जो रनिंग विंडो है वो रोम की प्रोसेस होती है, वो उसको बोला जाता है एक्चुअली कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग में क्या होता है, कंप्यूटर के बूटिंग में मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तब उसमें प्रोसेस क्या क्या होती है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है पोस्ट की।
सबसे पहली प्रोसेस होती है पोस्ट की। पोस्ट इज नथिंग बट दी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, लाइक प्रिंटर कनेक्टेड है क्या, स्कैनर कनेक्टेड है क्या, तो ये सब कुछ पोस्ट में चेक किया जाता है। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप कि मदरबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, रैम कनेक्टेड है कि नहीं। अगर यहीं पे पता चल गया कि रैम कनेक्टेड नहीं है तो वो आपको बिप बिप का साउंड देगा। या तो फिर एसएमपीएस। एसएमपीएस पता है क्या होता है? स्विच्ड Power मोड supply. पावर सप्लाई। यस, पावर सप्लाई के लिए जो होता है, वहां पे आपका फैन भी रोटेट नहीं हो रहा है, फैन में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी वो पीसी स्टार्ट नहीं होगा, वो बिप बिप करके बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो भी इनसाइड सीपीयू है वो पूरी की पूरी पोस्ट में चेक की जाती है। देन इसके नेक्स्ट होता है बायस। बायस में क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इनपुट के लिए क्या क्या कनेक्टेड है, आउटपुट के लिए क्या क्या कनेक्टेड है, कौन कौन से डिवाइसेस इनपुट के लिए कनेक्टेड है, कौन कौन से डिवाइसेस आउटपुट के लिए कनेक्टेड है, ये चेक करता है। देन ये चेक करने के बाद जो भी हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी स्टोर्ड है, क्योंकि कंप्यूटर स्विच ऑफ करने के बाद तो पूरा रैम का डेटा इरेज हो जाता है, तो एक परमानेंट कुछ स्टोरेज चाहिए जहां पे वी कैन स्टोर दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो जो लोकेशन है दैट इज हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क में परमानेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड होगी, तो वो लोड हो जाएगी रैम पे। हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगी रैम पे, और फिर यहाँ पे होगा आपका पूरा मशीन ऑन। तो यहाँ पे बोल सकते हो ओएस डील्स विथ रैम। और आप जब नया मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप क्या चेक करते हो सबसे पहले? रैम। रैम चेक करते हो। क्यों रैम क्यों चेक करते हो? स्पीड प्रोसेसिंग। स्पीड चाहिए ना। तो स्पीड चाहिए का मीनिंग क्या है कि आपके रैम की जो भी कैपेसिटी है, मान लो मेरे रैम की कैपेसिटी है 12 GB, और यहाँ पे जो जैसे मैंने अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी लोड होने वाली है हार्ड डिस्क से रैम पे, तो इसमें से कुछ स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम विल ऑक्यूपाई। तो अगर मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मान लो 4 GB की है, तो 4 GB तो आउट ऑफ 12 GB चला गया, तो बचा कितना? 8 GB। तो 8 GB इज अवेलेबल टू मी, ओनली 8 GB में यूज कर सकती हूँ, इवन माई रैम इज 12 GB। और सेम प्रोसेस मोबाइल में भी होती है। जब भी आपका मोबाइल मतलब ऑन रहता है, उस टाइम पे आपके रैम पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाती है, जो कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो लोड हो जाएगी रैम पे। तो लोड होने के बाद रैम का कुछ स्पेस वहां पे चला जाएगा, और आप क्या करते हो, व्हाट्सएप भी ऑन कर लेते हो, इंस्टा भी ऑन रहता है, गूगल भी ऑन रहता है, साथ में म्यूजिक भी सुनते हो, और ये सारे आप फ्लश नहीं करते हो, तो वो पूरे के पूरे रैम पे लोड रहते हैं, और ज्यादा प्रोसेसेस यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाने की वजह से मोबाइल हैंग होता है। तो इसीलिए आप चाहते हो कि रैम ज्यादा हो ताकि मोबाइल का स्पीड इंक्रीज हो। तो अगर 12 GB की जगह पे 16 GB है तो 4 GB चला जाएगा, तो यहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा 4 GB मिल जाएगा ना, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये लॉजिक होता है आपका मोबाइल में रैम चेक करने का। यस मैम, समझ। ओके, तो यहाँ पे बूटिंग की प्रोसेस में क्या क्या देखा हमने? पोस्ट देखा, बायस, देन ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विथ रैम।
तो वो जो रैम है उसमें दो टाइप से, डी रैम एंड यस रैम। देन रोम की प्रोसेस में यहाँ पे पोस्ट की जो प्रोसेस होती है इसके लिए रोम लगता है, ताकि रीड ओनली मेमोरी है ये, चेक करने के लिए। तो इसमें भी अगेन तीन टाइप्स आते हैं, पी रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रैम रोम, देन इरेजेबल रोम एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। देन सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। तो मैग्नेटिक मेमोरी में अभी तो हम यूज नहीं करते, बट पहले फ्लॉपी डिस्क यूज किया जाता था। फ्लॉपी डिस्क की साइज कम थी, 250 MB तक, 250 MB ही उसकी मोस्ट प्रोबेबली साइज रहती थी। अभी तो हम 500 GB भी हमें कम लगता है। तो इतनी कम साइज के वो फ्लॉपी डिस्क थे, तो अभी तो हम यूज नहीं करते। देन ऑप्टिकल मेमोरी में सीडी डीवीडी, सीडी डीवीडी तो अभी भी हम यूज करते हैं। तो जो भी डेटा स्टोर करना है वो हम सीडी डीवीडी में कर लेते थे। देन इसी में हमारा हार्ड डिस्क भी आएगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये कुछ मेमोरी के टाइप्स है और उसके कुछ एग्जांपल्स है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्यूटर बसेस। तो कंप्यूटर बसेस क्या है, देखो जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके एक दिखाया था यहाँ पे, तो मैं कलर दे देती हूँ। ये जो ड्रॉ किया हुआ है ये कनेक्शंस, तो ये कनेक्शंस को हम बोलते हैं बस। कनेक्शन को बोला जाता है बस। क्यों बोला जाता है इसको बस? ताकि जो भी डेटा ट्रांसमिट करना है वो डेटा कैरी करने वाला जो कनेक्शन है उसको बस बोला जाता है। बस का मोस्टली फंक्शन क्या होता है? जनरली कुछ कैरी करना ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वो डेटा विच इज इन द फॉर्मेट ऑफ सिग्नल होगा, या फिर ऑडियो वीडियो नंबर्स कुछ भी होगा, तो वो कैरी करने के लिए वी रिक्वायर्ड दी बस। So computer buses, a bus is a common pathway through which information flows from one computer component to another. एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डेटा को कैरी करना है, दैट पाथवे इज नोन एज कंप्यूटर बसेस। तो इसका जो भी कनेक्शन रहेगा वो इस काइंड में रहेगा। तो सीपीयू मतलब माइक्रो प्रोसेसर, देन रैम है, रोम है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, या तो फिर और भी कुछ डिवाइसेस है जो हमने कनेक्ट किए हुए हैं। तो उन सबको कैरी करने के लिए सी डेटा बस एक है, कंट्रोल बस एक है। तो अभी इसका आपने अगर डायरेक्शन चेक किया तो डेटा बस जो है वो ब्लू कलर में दिख रही है, उसका एक एरो सीपीयू की साइड में भी है और दूसरा एरो रैम के साइड में भी है, रोम के साइड में भी है, इनपुट आउटपुट या अदर, मतलब कुछ भी कनेक्ट कर लो आप। ये बाय डायरेक्शनल होगा, मतलब डेटा सेंड भी करेगा और डेटा रिसीव भी करेगा। तो वो डेटा बस है, मतलब जो डेटा कैरी करेगा। क्योंकि जब भी हम सीपीयू को कुछ प्रोसेस करने के लिए दे देते हैं तो वो प्रोसेस करने के बाद वापस भेजेगा ना, वो डायरेक्टली तो आउटपुट नहीं डिस्प्ले कर सकता। डिस्प्ले करने के लिए फिर से उसको क्या करना होगा, वापस मदर तुझा आज किसी लॅपटॉप मला स्टोरेज। परत लागणार आहे. हेलो केदार, सॉरी मॅम, सॉरी मॅम. तो डेटा बाय डायरेक्शनल होगा। देन कंट्रोल बस, कुछ भी हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो हर एक चीज पे कंट्रोल होना चाहिए, मतलब हर एक चीज एक्टिव है कि नहीं, वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करने के लिए कंट्रोल बस इज देयर। तो कंट्रोल बस इज अगेन दी बाय डायरेक्शनल। देन नेक्स्ट बस है एड्रेस बस। तो एड्रेस बस इज द ओनली बस विच इज द यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि ये
सीपीयू के पास जब जाएगी तो सीपीयू उसको स्टोर नहीं करके रखेगा किसी डेटा को, तो सीपीयू क्या करेगा, उस पे प्रोसेस करके वो डेटा भेज देगा। और एट ए टाइम सीपीयू एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। एट ए टाइम सीपीयू एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एड्रेस बस इज द यूनिडायरेक्शनल। एड्रेस मतलब क्या, कि हम कुछ डेटा सेव कर रहे हैं, मान लो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसका कुछ लोकेशन होगा। अगर यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं तो ये बन गया उसका लोकेशन, उसके लिए भी कुछ नंबरिंग होगा, राइट, ऐसे कुछ नंबर होगा उसका भी। तो वो एड्रेस जो रहेगा, वो एड्रेस सीपीयू पे नहीं रहेगा, क्योंकि सीपीयू एक ही टास्क ले रहा है और उसी को वो परफॉर्म कर रहा है। बट जब सीपीयू वो टास्क परफॉर्म करने के बाद सेंड करेगा टुवर्ड्स द रैम, रोम, इनपुट आउटपुट और एनी डिवाइस के पास, तो रैम पे भी तो वो स्टोर होगी कहीं पे, क्योंकि रैम की साइज तो ज्यादा है, 12 GB, 13 GB, 16 GB जो भी है। तो वहां पे कौन से लोकेशन पे स्टोर करेगा, इट इज इन दी एड्रेस बस। रोम पे कहाँ पे होगा, इनपुट आउटपुट पे कहाँ पे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट सीपीयू के पास जाने के लिए उसको एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आगे आएगा डिटेल में। तो ये है कंप्यूटर बसेस। देन अगेन कंप्यूटर बसेस में और दो डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक इम्पोर्टेंट है, रैम है, हार्ड डिस्क है, तो ऐसे ही दो और कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। तो नॉर्थ ब्रिज जो है इट इज कनेक्टेड टू द नॉर्थ साइड डिवाइसेस। नॉर्थ ब्रिज जो है वो नॉर्थ साइड के डिवाइसेस कनेक्ट करता है। देन साउथ ब्रिज जो है वो साउथ साइड के डिवाइसेस कनेक्ट करता है। तो इसमें ये देखेंगे आगे हम। देन आईएसए, यहाँ पे आईएसए है, आईएसए बस। तो आईएसए बस ये साउथ ब्रिज को कनेक्टेड है, तो ये कोई तो डिवाइस है जो इसको कनेक्टेड है साउथ ब्रिज को, तो वो डिवाइस कौन सा है देखो। तो आईएसए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम। आईबीएम ने ये मार्केट में पहले लाया था, और जब ये डिफाइन किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया, एट दैट टाइम इट वाज एन 8-bit बस, and later it is expanded to the 16-bit. Now 8-bit and 16-bit का मीनिंग क्या है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ पीसी पे। यस, ये जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे देखो, ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। 64-bit मतलब क्या है कि एट ए टाइम 64-bit ये ट्रांसमिट कर सकता है। अभी के लिए ये 64 है, बट जब आया था उस टाइम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग आईएसए की बात कर रहे हैं। तो जब ये वाला डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ था वो 8-bit था और 16-bit था, जो कि 1984 में आया। तो ये डिवाइस क्या है, अभी हमने देखा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का डिवाइस जहां पे इंसर्ट किया जाता है वो वाला सॉकेट है। रैम जहां पे इंसर्ट की जाती है वो वाला सॉकेट है ये, और ये सॉकेट मदरबोर्ड पे इनबिल्ट रहता है।
और एक्स्ट्रा भी यहाँ पे रहता है ताकि हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। जब नया मोबाइल खरीदते हैं उस टाइम पे रहता है ना 4 GB इनबिल्ट एंड यू कैन एक्सपांड इट, एक्सपांडेबल ऐसा वर्ड यूज करके वो आगे भी साइज दे देते हैं। मोबाइल में रैम इंक्रीज करने की फैसिलिटी नहीं होती जनरली, वहां पे उसका स्टोरेज इंक्रीज कर सकते। लैपटॉप में होता है 8 GB इनबिल्ट है, 8 GB एक्सपांडेबल। इट मीन्स ऐसा एक रहेगा जिसमें रैम ऑलरेडी इंसर्टेड रहेगी और एक सॉकेट जो वेकेंट रहेगा, जो फ्री रहेगा, जहां पे यू कैन ऐड अनदर वन। When this bus was originally released, it was a proprietary bus. Now, what is mean by proprietary? Anyone knows? Proprietary का meaning क्या है? Yes. Proprietary क्या होता है? सुना है वर्ड कभी? एप्पल का फोन पता है सबको? मैकबुक, एप्पल के फोन पता Yes, है ma'am. ना? तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होती है? iOS. iOS. iOS है। मैकबुक में ठीक है, चलो एप्पल के फोन में iOS होती है, राइट? और अगर मैंने सैमसंग के फोन लिए तो सैमसंग में, Android. Android. वन प्लस में, Android. मोटोरोला, एंड्रॉइड सब में एंड्रॉइड आईफोन सब में अदर देन एप्पल। क्यों हम एप्पल के जैसे iOS बाकी इस पे इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या? मैं चाहती हूँ मेरा सैमसंग का फोन है तो वहां पे मैं iOS इंस्टॉल करना चाहती हूँ, तो कर सकती हूँ? No, I cannot. नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो compatibility भी होनी चाहिए। So that compatibility is known as proprietary. तो proprietary का मीनिंग क्या है कि जो भी जिसने बनाया है, मतलब एप्पल ने डिफाइन किया है iOS, तो एप्पल के फोन में ही वो चलेगा। दैट इज प्रोप्राइटरी, उनका खुद का प्रोप्राइटरी है, तो उन्हीं के प्रोडक्ट पे वो यूज कर सकते हैं। और जैसे एंड्रॉयड है तो वो किसी भी प्रोडक्ट पे यूज कर सकते हो, सो दैट इज नोन एज ओपन सोर्स। तो जब ये वाला ISA डिफाइन हुआ था उस टाइम पे वो प्रोप्राइटरी बस थी, विच अलाउड ओनली IBM टू क्रिएट पेरिफेरल्स एंड एक्चुअल इंटरफेस। But later on in 1980s, the bus was being created by other clone manufacturers. जैसे कि अभी हुआ है, बहुत सारे फीचर्स एप्पल के वन प्लस ने ले लिए, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी क्लोन क्रिएट किया उसका, तो वो क्लोन करके उन्होंने ओपन सोर्स में रख दिया तो वो हो गया। तो वैसे ही इसका क्लोन कर दिया और बाद में इंट्रोड्यूस हुआ PCI, जो कि रिसेंटली वी आर यूजिंग। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस बाय इंटेल इन 1992, PCI is short for peripheral component interconnect and is 32-bit and 64-bit expansion bus. तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो 64-bit था, तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit ये है, PCI का स्लॉट अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पे वो चल सकती है। और सी, ये जो डायग्राम दिखाई है यहाँ पे,
ये व्हाइट कलर में जो दिख रहा है ये सॉकेट है, और ये जो है ये कार्ड है। तो ऐसे अलग अलग कार्ड्स आते हैं। जो अभी यहाँ पे देखोगे तो ये देखो ये दिख रहा है, तो एनीवन नोज दिस, देन दिस इज द HDMI। HDMI केबल जहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो उसका ये कार्ड है। तो ये कार्ड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, नॉट ओनली फॉर द रैम बट ऑल्सो अदर सॉकेट्स अवेलेबल करने हैं, देन वी कैन यूज these टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो रैम भी आप देखोगे तो रैम भी ऐसे ही आती है, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। यस दिख रहा है। तो ऐसे ग्रीन कलर की रैम आती है, और ये देखो यहाँ पे दिखाया है, ये स्लॉट में ऐसे इंसर्ट किया जाता है। ये ऐसे अलग सी रैम रहती है और उसको इंसर्ट करने के लिए ऐसे स्लॉट्स रहते हैं। और इसके अलावा भी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इमेज अगर हो गई अच्छे से ओपन तो दिखेगा। तो यही पे देख लो, ये व्हाइट कलर के और भी दिख रहे हैं। तो अगर मान लो कि मेरे लैन का पोर्ट जो है कंप्यूटर का वो खराब हो गया, डैमेज हो गया, और मैं अगर रिपेयर करने के लिए जाती हूँ, तो वहां पे वो कैसे रिपेयर करते हैं, तो वो डायरेक्टली ऐसा कार्ड हटा देते हैं जो लैन का है, और उसकी जगह पे नया कार्ड डाल देते हैं जो आपको नया लैन का पोर्ट अवेलेबल करके देगा। जैसे ग्राफिक्स कार्ड भी तो यूज करते हैं ना, तो उस पर्पस के लिए भी ऐसे सॉकेट्स अवेलेबल होते हैं। कई कंप्यूटर्स के स्पेसिफिकेशन में आता है कि एक्सपांडेबल ग्राफिक्स कार्ड करके, तो वहां पे भी ऐसे सॉकेट अवेलेबल है ताकि आप ग्राफिक कार्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दो। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मैम वो जस्ट स्लाइड्स दिखा सकते हैं ISA और PCI का? यस, और एक उसके आगे बताना है, वो कंप्लीट करके बता दो, दिखा देते हैं, ओके ठीक है? मैम। ओके मैम। ओके, तो ये हो गया कंप्यूटर के बारे में। तो इतना बड़ा हम लैपटॉप में नहीं इंसर्ट कर सकते ना, इतना बड़ा पोर्ट लेके उसमें ये कार्ड इंसर्ट करना इज नॉट दैट मच इजी और कन्वीनियंट, क्योंकि लैपटॉप की साइज तो कम होती है। तो फिर लैपटॉप में क्या करेंगे? तो फॉर दैट पर्पस PCMCIA इज देयर। सो शॉर्ट फॉर पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, इन्होंने ये बनाया है जो कि आपका लैपटॉप में आपको बाकी के फंक्शंस ऐड करके देगा। So PCMCIA card are hardware interface that are slightly bigger than a
Okay, sorry, I was disconnected. Okay. Due to some technical issue, I was disconnected. So see, in लैपटॉप में PCM CIA काम करेगा। जैसे कंप्यूटर में रैम इंसर्ट करने के लिए PCI है, वैसे लैपटॉप में रैम या तो फिर और भी कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी है तो PCM CIA अवेलेबल। तो ये जनरली हमारा जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उस साइज का होता है। क्लियर? यस। हेलो मैम, आपने अभी जो लास्ट लाइन बोला ना वो कट हुआ। आपने क्या बोला? क्रेडिट कार्ड जैसा? हमारा जो क्रेडिट कार्ड की साइज होती है ना उसके जैसी उसकी साइज होती ये PCMCIA कार्ड की क्या? है। नहीं, वो इंसर्ट करने की ओके ओके कार्ड, ओके। वो लाइक अभी मुझे रैम की बात छोड़ दो, ग्राफिक कार्ड वगैरह ऐड करना है लैपटॉप में, तो वो ग्राफिक कार्ड तो मैं बाहर से लेके आऊंगी ना, बट उसका जो सॉकेट होगा वो ऑलरेडी लैपटॉप में होना चाहिए, तो उसकी साइज रहेगी क्रेडिट कार्ड की और उसके अंदर हम वो कनेक्ट करते हैं। ओके मैम, गॉट इट। ओके, एनी अदर डाउट? यस, कौन सी स्लाइड देखनी थी? Excuse me, ma'am. ये वाली? Expansion card. ये वाली? Yes, ma'am. हाँ। Okay, ma'am. Done with it. नोट कर लो, करना।
हो गया नोट करके? Yes, Yes, ma'am. done? Yes, Okay. ma'am. Okay. Some technical issues are here from my side. So for today, we'll stop here. And from Monday, we'll start our session for 2.5 hour or 3 hour. ठीक है, कल तो सैटरडे है, कल एंड डे आफ्टर टुमारो हॉलीडे, तो मंडे से हम फुल फ्लेक्स में स्टार्ट करते हैं। ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, ठीक है देन। ओके, बाय, हैव अ गुड डे। Bye, ma'am. या Yes, Thank ma'am. you. Thank you so much. आपकी साइड से कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। मैम लाइक बीच बीच में ना थोड़ा जब नेटवर्क जाता है ना तो आवाज कट होता है, तो इसका रिकॉर्डिंग मिल सकता है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग वो अपलोड कर देंगे हम, वो आपको मिल जाएगा। ओके ओके मैम, चलेगा। रिकॉर्डिंग डे टू डे अपलोड कर देंगे हम। नोट्स भी वहां पे अपलोड करेंगे, बट नोट्स के लिए और 3-4 दिन, मतलब थोड़ा सिलेबस होने के बाद विल अपलोड इट। ओके, और वो ईमेल आईडी पे मिलेगा क्या? ईमेल आईडी, हाँ, आपका मेल उसमें ऐड किया जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस लोकेशन पे आपको डेली चेक करना है। ओके ओके मैम, चलेगा। ठीक है? यस मैम, थैंक यू सो मच। या चलो, बाय देन, सी यू ऑन यस मंडे। मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Thank you.